वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि ये आप लोगों का एक फ्री सेशन है अबाउट आइटा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आपका जो बैकग्राउंड साउंड है वो बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। Everyone is requested to mute themselves. Whenever you want to ask question, then you can raise your hand by the reaction, choosing it in the Zoom, or by just raising your hand like this, and then you can ask your question. अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम देख पाएं कि आप कौन हैं। अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है तो अगर हम आपको देख नहीं सकते, then we won't be able to take your question also, right? Before I start taking your questions, I would like to inform you that my name is Mayank and I am one of the faculty in the tourism school where we teaches travel and tourism practically with the complete practical approach and in the practical manner. So we are not representing ITA, but our motive is to help all of those who want to do any ITA course or who are looking for any ITA recognition, and do not let them get fooled by fraudulent people or by any fraudulent website where the wrong information of ITA is given. Most of the information of ITA, not most, all the information of the ITA is available very easily on their own official website, which is ita.org. Okay. So we do not appreciate anyone to go through any agent or going through any or even going through us or going through anyone when you have to do anything through linked with ITA. So if you need to do anything linked with ITA, you can always get in touch with ITA directly. As I mentioned, that ita.org is their official site, and through that reaching ITA is very easy. But still, people, they face problem and they have a lot of confusion. So we are just trying to answer those questions here. Okay. So anyone who has question can start. Once again, I would request that everyone who want to ask question, who want to get the benefit of this live class, keep their videos on, or otherwise after 1 minute, I would need to remove you from this class. Any questions? Okay, as I'm not getting any questions from anyone, till the time you people would send me questions, let me give you some detail about ITA. It is an International Air Transport Association, as most of you are aware of that. It is very easy to handle and to deal with that. Majorly, people who want to come into travel, they need ITA either to recognize their own travel agency or to get the certificates. So the first confusion is that people have no idea, do they need a certificate for getting ITA recognition or not? So this is the first thing which I am going to address, that you just do not need to get ITA certification to get your travel company recognized by the ITA. So there is no need of getting ITA certificate for getting your travel company recognized, right? Earlier, it was mandatory. Many years back, it was mandatory that any travel company which is looking for ITA recognition was required to go for ITA certification. But that is not the case anymore. Now there is nothing like that, right? Yes, there are majorly 4 versions of ITA certifications or ITA numbers, which we all are aware of, जो कि हम सबको अच्छी तरह से मालूम है. ITA TIDS, ITA Go Light, ITA Go Standard and ITA Go Global. जब हम ITA Go Standard या ITA Go Global के लिए अप्लाई करते हैं, when we apply for ITA Go Global,
Then we need employees, or we ourselves, people who are associated with that company, which is applying for ITA Go Global. Then ITA says that this company must have minimum two ITA certified employees. So if you yourself who want to get their company recognized as ITA Go Global, then you can apply for ITA certification on your own name, or you can hire any two people who already have ITA certification, right? So that is one of the most important thing which everyone should know. When we are going for ITA Go Light, ITA certificates are not required. When we are going for ITA TIDS, no certification is required. So there are a lot of ways of getting the ITA recognition. Any questions anyone would like to ask? Once again, I would request everyone to keep your cameras on, otherwise I would need to remove you. Umang, I can not see you, your camera is on, but you are not visible. So make yourself visible, or else I would need to remove you. Okay. Sanjay, Mohammed, and Noman, please keep your camera on. Any questions anyone would like to ask? Sir, this IATA Lite, like we have to apply it only from the online? Yes, there is no other way. There are few agencies who offers their service that we can get you ITA Go Light, right? They would charge you 50,000, 60,000 extra. Whatever Okay. is the ITA fees that you have to pay, right? But Okay. other than that, they would charge you their own consultancy charges, right? And what work you need to do by going on ITA's portal, they would be doing for you. So there is no benefit. If I tell you someday that you give me 20,000 rupees, so I am charging you 20,000 rupees only and only for doing that paperwork or that work which you are supposed to do. So I am spending my time. That is why I'm charging you for that. Excuse me. IATA Lite also, so we don't need any certificates. You do not need any ITA certification. At few platforms, at few time, ITA says that you should have, or if you have GDS certificate. What are the GDS? So majorly we have 3 GDS. One is Sabre, other is Amadeus and Galileo. Okay. If they are asking for GDS certification, then you should have certificate of either Galileo or Sabre or Amadeus. Still, they are not saying that you should have ITA certificate. Okay. So that is one of the biggest confusion people have. A lot of people, they think for getting job, they need to have certificate, right? This is also completely wrong. There is no need of certificate if you are looking for a job. The certificate which is required is the certificate of GDS, because the practical air ticketing happens on GDS. Let's say someone is going for, really in depth of air ticketing and going for a very high post, then yes, then they do ask for ITA certificate also. But for entry level, mid level, 90% jobs which are available are easy to get without having ITA certificate, only and only on the basis of GDS certificate you can get that, right? I hope this thing is clear. Yes, sir. Any other question anyone would like to ask? So once we have Yes, Narayan, go ahead. Yeah, so once we have this IATA Lite, so Yeah, we ITA can Go start Light. So IATA Go Lite, then we can go with this PPS system of payment settlement. So because now we are having the PCC of some other travel agencies and we are using that one. So Right. once we took on
Yes, please. Yeah, go ahead. Go ahead. Once we taken the like go light, then we can able to book the tickets with this one, and we can settle the payment at the end of the day, or like they will be giving some grace period to. In the beginning, they are not going to give you any grace period. You would need to connect Easy Pay with your ITA Go Lite, which is again very easy, and that happens without any charges. So you connect your credit card or your any payment mode with that, and whenever you have made the ticket, you make the payment, and then only the ticket gets issued. But yes, once you know GDS very well, then you can hold the ticket without making the payment. And a trained GDS trainer can hold the ticket for a very long time also. There is time limit which is given by the airlines, but when we are trained on GDS, then we can keep increasing that time limit. So there are ways of keep getting it extended, right? Even for the low cost carrier, we have such options. So the fare will be like the holder will be same the fare, or? See, Narayan, this is a very good question you are asking. A lot of people, they think once they have an ITA, then they have lower fare. Okay. First of all, please understand, having an ITA is not going to affect the cost of your air ticket drastically. If it would affect by only few percent. That few percent means 2%, 3%, maximum 5%. Okay, that 5% is of the profit. So which means if right now you are making 2,000 rupees, having an ITA number on the same ticket would make you earn 2,100 rupees, 100 rupees extra, right? So having just an ITA number or ITA recognition or ITA certification, accreditation is not going to improve your prices. The prices are going to improve only and only on the basis of your knowledge about GDS. It is the GDS, it is the right air ticketing process that you need to follow to get the reduced fare or to reduce the fare which are available, that you can do it only and only when you know how to use the GDS properly. I hope you got the answer of your question. Anything else? Yes, you wanted, Jagtar, you wanted to ask something. Yeah, sir. Actually, I am running a travel agency and I want to go for the Go Light now. Can you please help me in that? I will discuss you later related to that. Jagtar, again, the same thing. I think this is what we mentioned in the beginning also. I hope you understand Hindi. आपको हिंदी भी समझ में आती है? हाँ सर, आती है तो बिल्कुल। मैं आपको जवाब हिंदी में दूंगा क्योंकि कुछ हमारे ऑडियंस है जो हिंदी में भी सुनना चाहेंगे और कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश में सुनना चाहेंगे। बट ये मैंने शुरू में इंग्लिश में भी बोला है। देखो जगतार, आप मुझसे कह रहे हो ना आप मेरी हेल्प कर दो, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जगतार आप मेरे को 20,000 रुपए दो और मैं आपका पूरा प्रोसेस करवा दूंगा और 3 हफ्ते के अंदर आपके पास ITA Go Lite होगा, ठीक है? बट मेरे एथिक्स मेरे को ये चीज अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये ऐसा ही है कि आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है, जाना तो आप ही को पड़ेगा, है ना? पर मैं फॉर्म भरने के और कागज लगा के उन्हें चेक करने के आपसे 5,000 रुपए ले। मेजरली काम वही होगा, आपको ITA के पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आप दोगे, अगर मैं भी आपके लिए करूंगा तो भी डॉक्यूमेंट आप ही दोगे। वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? वो आपको एक अपना इनवॉइस भेजेंगे कि हाँ जी आपने ITA Go Lite के लिए अप्लाई किया, ये हमारे चार्जेस हैं, ये आप पे कर दीजिए। आप उन चार्जेस को जब पे कर देंगे तो आपको ITA Go Lite मिल जाएगा और ये सारा कुछ 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाता है, ठीक है? अब ये काम इतना आसान है जगतार कि आप खुद कर सकते हो। किसी को क्यों 20,000 रुपए या 40,000 या 50,000 रुपए देने? ऐसे एजेंट अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएंगे कि हाँ जी हम करवा देते हैं। और उसमें से कई ऐसे होंगे जो आधे पैसे पहले लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, फिर उसके बाद इवेंचुअली जब आपके पैसे फंस चुके होंगे वो आपको बता देंगे अच्छा आप ऐसे करो आप खुद ही कर रहे होंगे।
तो Okay. मेरे से आपको जो इन्फॉर्मेशन, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, वो कैसे मिलेगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ठीक है, आप ये चाहते हो कि उसको कोई चेक कर ले क्या वो ठीक है या गलत है, वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं जरूर आपको चेक करके उसका बता सकता हूँ कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है, या कोई आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो वो बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप मेरे से जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। Okay, आई sir. होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। Right, right, sir. हाँ जी, और बताइए, और कोई सवाल? So what is that actual the fee of the from the देखिए, अगर हम आइटा के पोर्टल के ऊपर जाकर भी देखते हैं ना, तो ये लोग जो चार्जेस अपने बताते हैं वो अप्रोक्सीमेटली बैठते हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बैठते हैं अराउंड 40,000, ठीक है। बट जब ये इनवॉइस भेजते हैं तो आपका जो इनवॉइस आता है वो अराउंड 60,000 का आता है, ठीक है। तो वो हमारा करीब 60,000 रुपए का आता है। तो आप यही मानकर चलो कि आपके 60 से 70,000 रुपए लगने वाले हैं। पर यहाँ पे समझने की बात इतनी सी है कि आप ये पैसे किसी और को मत दीजिए या किसी और के थ्रू मत कीजिए। ये अगर आप आइटा को दे रहे हो, जितने भी पैसे दे रहे हो वो सेफ है। जब आप किसी और को दे रहे हो और वो फिर वो आइटा को देगा, तो बीच में कुछ रख रहा है या नहीं रख रहा है ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो यू कीप अ टेंटेटिव कॉस्ट फॉर यू as 60 to 70,000, not more than that. So the invoice comes with every application when it is submitted properly. Then an invoice comes, and on the basis of that you can make the payment and then you can proceed. Invoice वो तभी भेजेंगे जब उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए, उनको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तभी आपके पास इनवॉइस आएगा। अदरवाइज आपके पास इनवॉइस आएगा नहीं। इनवॉइस आता है तो आप उसके क्वेरी बैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ इनवॉइस के अंदर उन्होंने ऐसी सर्विसेज ऐड की हैं which you does not need, then you can write them back, you can communicate back through your own portal and your login that ये चार्जेस को रिमूव किया जाए, मुझे ये सर्विसेज नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट द चार्जेस रिमूव्ड, ठीक है। आपका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर? हेलो। हाँ जी, बोलिए प्लीज। अपने आप को विजिबल रखिए और फिर पूछिए, अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद नुमान। मैं बोलो। मुंबई में ऑफिस चलाता हूँ सर। मुझे थोड़ा सा आइटा सर्टिफिकेट के ताल्लुक से थोड़ा सा 5 मिनट का वो बता दीजिए कि इसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा इन शॉर्ट में। देखो, सबसे और पहले तो नुमान, अगर आप अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाते हो एक्सक्यूज मी, अगर आप अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाते हो तो आपको सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि सर्टिफिकेट आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आप सर्टिफिकेट नॉलेज गेन करने के लिए लेना चाहते हो, या फिर अपनी एयर टिकट का प्राइस कम करने के लिए लेना चाहते हो, या टिकट इश्यूएंस के लिए लेना चाहते हो? सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को। मतलब उसका बेनिफिट्स क्या है, जैसे टिकट का फेयर उससे कम हो सकता है? अगर आप अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो तो प्रैक्टिकली इफेक्टिवली उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है जब तक आप आइटा गो ग्लोबल के लिए नहीं जाते। मतलब जब तक आप महीने की 300-400 इंटरनेशनल एयर टिकट इश्यू नहीं कर रहे हो, तब तक एक ट्रैवल एजेंट के लिए सर्टिफिकेट करने का कोई खास फायदा नहीं होता है। क्योंकि जो नॉलेज है, आप लोग अपनी एजेंसी चला रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकली एयर टिकटिंग की नॉलेज है, चाहे आपने कोई कोर्स किया है या नहीं किया है, ठीक है। सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। आपको आइटा गो लाइट लेना है या फिर आइटा गो स्टैंडर्ड लेना है, आप अप्लाई कीजिए, उनकी फीस पे कीजिए और ले लीजिए। सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? प्रैक्टिकल एयर टिकटिंग सीखनी है, कहीं से मर्जी सीखिए, GDS सीखिए, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न देन लर्न GDS। हाँ जी, बोलिए। जो GDS हमने सीख लिया, तो GDS सीखने पे भी आइटा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या आइटा सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए कोई अलग सा कोर्स हमें पूरा करना पड़ेगा? एग्जाम आइटा का कोर्स करना है, अगर आपको आइटा का कोर्स करना है तो उसको करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप किसी भी आइटा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के पास चले जाइए। आप कहेंगे कि आपको आइटा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कैसे मालूम चलेंगे, तो उनकी लिस्ट भी आइटा की साइट पे दी गई है, अदरवाइज गूगल करके भी मिल जाएंगे। हम नहीं कहते कि हमसे आप आइटा रिकॉग्नाइज, क्योंकि हम करवाते भी नहीं, क्योंकि हमारे को वो पूरी थ्योरी है, हमारे को उसमें कोई सेंस नहीं लगती कराने की।
ठीक है। जो भी कोर्स है, जो एक स्टैंडर्ड कोर्स आपको करना चाहिए, उसकी आईटा की फीस करीब 40,000 रुपए है। जो कोई भी इंस्टीट्यूट करवाएगा वो 60,000 से 1 लाख रुपए चार्ज करेगा, या तो 60,000 चार्ज करेगा मिनिमम, नहीं तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए चार्ज करेगा। जो एक्स्ट्रा पैसे वो चार्ज कर रहा है वो किस चीज के लिए कर रहा है? वो आपको उसी बुक को पढ़ा के दिखाने के लिए, देखो बेटा ये। अब कोई आप 6ठी क्लास में पढ़ने वाले, 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे तो है नहीं कि एक एक शब्द आपको पढ़ाकर समझाना पड़े, ठीक है। तो उस थ्योरी को पढ़ाने के लिए हम तो किसी से पैसे लेते नहीं, ठीक है। इसीलिए हमें लगता है कि हम आईटा कोर्स ना ही कराएं। प्रैक्टिकल जीडीएस जब करते हो तो आईटा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अगर थ्योरी ही समझनी है तो aita.org पे जाकर कोर्स के लिए रजिस्टर करो, पीडीएफ बुक आ जाएगी आपके पास। पीडीएफ अपना किसी और को मत दो, ठीक है, खुद ही उसको पढ़ो। आपको कोई चीज उसके अंदर समझ में नहीं आती है, आप हमारे से फ्री असिस्टेंस ले सकते हो, हम आपको फ्री गाइडेंस दे सकते हैं। पर हम आपको आईटा पढ़ाने के, हम आपसे कभी कोई पैसे नहीं लेंगे, ना ही हम ले सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल है। अब बात आ गई कि जीडीएस कोर्स आप करते हो या सर्टिफिकेट लेते हो तो क्या वो आईटा का कोर्स, आईटा का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं, जीडीएस कोर्स पर आईटा का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जीडीएस कोर्स पे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लीज एवरीवन कीप योर कैमरास ऑन, अदरवाइज आई वुड नीड टू रिमूव यू। अभी तक मैं 8 से 10 लोगों को रिमूव कर चुका हूं, ठीक है। तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब शायद सिर्फ 7-8 मिनट बचे हैं। जो भी इसके अंदर रहना चाहता है अपना कैमरा ऑन रखे। ओके, जीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है, आईटा भी कहता है कि आप जीडीएस करो। जितने भी जीडीएस हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई छोटी सी कंपनी भी क्रिएट कर सकती है, हर छोटी कंपनी इसे क्रिएट नहीं कर सकती। दीज आर वेल नोन कंपनीज एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय आईटा, ठीक है। तो इन्हों के सर्टिफिकेट एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनीज, इंटरनेशनली हर एक कोई इसको एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपको जीडीएस के सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट नहीं होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट ही आपको जीडीएस के सर्टिफिकेट का होता है, ठीक है। हाँ जी, और बताइए, और कोई? और अगर फिर भी मैं एक बार दोबारा से बोल देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं आईटा का कोर्स करना, सर्टिफिकेट लेना, तो कोई बुराई नहीं है, एवरी नॉलेज इज गुड। तो आप अपना aita.org पे जाके रजिस्टर कीजिए, सबसे सस्ता पड़ेगा, 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। aita.org, जैसे हम ऑनलाइन उसमें टीचर भी अवेलेबल रहेंगे या मैनुअली खुद ही? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप टीचर वाले के लिए जाना चाहोगे तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप बिना टीचर के लिए जाना चाहोगे तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। बट जितने भी ट्रैवल एजेंसी या एयर टिकटिंग से रिलेटेड जितने भी क्या कहते हैं कोर्सेज हैं, उसमें आपको टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप अखबार को पढ़ के समझ सकते हो अपने आप, वैसे ही आप आईटा की बुक्स इतनी अच्छे से बनाई गई हैं कि आप उनको पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन सर इसमें आईटा ने जब ये कोर्स रखे तो मैनुअली जीडीएस प्रोग्राम भी उसमें मेरे रखा हुआ तो शामिल होना चाहिए है। बिल्कुल है, क्योंकि जब तक बिल्कुल है, कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम जो टिकट कैसे इशू करेंगे? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं वो अब आईटा ने करना स्टार्ट कर दिया है। आईटा अब आपको जो कोर्सेज दे रहा है उसके अंदर वो साथ में अमेडियस या साथ में गैलीलियो करवा रहा है। बट ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो वो साथ में करवा रहे हैं, क्योंकि वो रिमोटली करवा रहे हैं, वो उतना ज्यादा अच्छे से करवा नहीं पाते हैं, ठीक है। इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है फैकल्टी का, जिस ढंग से आप और मैं बात कर पा रहे हैं उतना अच्छे से कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, यही दिक्कत आती है सिर्फ, ठीक है। आप जहां पर भी हैं, कहीं पर यदि आप जीडीएस करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे उनके इंस्टीट्यूट में जाके करें, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमसे करें। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। उनसे आप ये पूछिए कि जो आप मुझे जीडीएस सिखाएंगे उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या आप मेरे को लाइव सिस्टम देंगे? मुझे लाइव सिस्टम चाहिए, मेरे को पायरेसी नहीं चाहिए, मुझे मुंडुस नहीं चाहिए, मेरे को पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मेरे को सीडी पे नहीं चाहिए, मुझे रियल लाइव सिस्टम चाहिए है जिसके ऊपर मैं सच में पीएनआर क्रिएट कर सकूं, सच में फेयर देख सकूं, फेयर ब्रेक कर सकूं, क्लियर क्यूज क्रिएट कर सकूं, सेगमेंट ब्रेकिंग कर सकूं, जो चीजें एक्चुअली एक प्रैक्टिकल ट्रैवल एजेंट को करनी होती हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये कोर्स करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जो जहां से भी करें, जहां से मर्जी करें, ये चीज आपको क्रॉस चेक करनी है। और ये जब आप सिस्टम पर देखोगे ना तो सिस्टम पे लिखा हुआ आ रहा होगा, जो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कराएगा वो अपना सिस्टम दिखा सकता है कि देखिए उसके ऊपर लिखी होती है उनकी आईडी,
उसको आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ ये जेन्युइन है कि ये गलत है। और वो जो सर्टिफिकेट देंगे, जिनके पास भी वो लीगल आईडी है, वो सर्टिफिकेट भी जेन्युइन होगा। बहुत सारे यहाँ पर एक और बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल कि लोग पहले जॉब ऑफर करते हैं कि हाँ जी आपकी जॉब लग गई है 20,000 रुपए की, ठीक है। फिर कहते हैं कि इसके लिए आपको आईटा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि हमसे लो, क्योंकि वो अगर कहेंगे हमसे लो तो लोग सोचेंगे कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जहां से मर्जी ले लो, ठीक है। बट जब वो बच्चा वहां से इंटरव्यू देके चला जाता है, या जब उसको ये बात पता लग जाती है उसको आईटा है, तो उसके पास खुद ही 1-2 फोन आते हैं, वो अपना कुछ और कंपनी बताते हैं और वो एक नकली आईटा का सर्टिफिकेट 5,000 10,000 रुपए में सेल करते हैं। तो एक्चुअली वो बिल्कुल फेक सर्टिफिकेट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक तरह का फ्रॉड है, तो उस चक्कर में आप ना पड़े। सो व्हेन यू वांट टू टेक GDS certificate or you want to take ITA certificate, take that directly from the GDS, जो या तो उनसे लें या फिर aita.org से। सर इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 6 मंथ्स है 3 मंथ किसकी? ये कोर्स करने की, एग्जाम देने की? जैसे हमने आईटा के कोर्स की बात कर रहे हो कि GDS की बात? आईटा कोर्स की 3 महीने के कोर्स भी हैं, 6 महीने के भी हैं, ठीक है। यूजली होता यह है कि साल में 2 बार एग्जाम होता है आईटा का। समझ गया। आईटा ये कहता है कि आप एनरोल कर लो, एग्जाम आप 2 साल के अंदर दे सकते हो, 2 ईयर ठीक है। वैसे 3 से 4 महीने के अंदर आप कर लेते हो, ठीक है। और एक बार अगर आप फेल हो जाते हो तो दूसरी बार भी दे सकते हो। 2 अटेम्प्ट आईटा आपको देता है, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको कुछ चार्ज नहीं करना, कुछ पे नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो आईएएस का एग्जाम हो गया है, बहुत डेंजर। हाँ जी। और जीडीएस का 3 मंथ्स का होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ठीक से पढ़ा रहा है, अगर उनको अपना काम आता है, तो वो 3 महीने में आपको एक्सपर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको काम नहीं आता वो 6 महीने भी पढ़ाएंगे, 1 साल भी पढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। और अगर कोई ठीक से मेहनत करे इसके ऊपर, तो वो 3 महीने में इतना सीख सकता है जीडीएस कि जो लोग 5-5 साल में जाके उसके एक्सपर्ट बनते हैं, इतना आप 3 महीने में सीख सकते हैं। जीडीएस ऐसी चीज है, ये करने से आता है। जी हाँ, वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकली होना चाहिए। हाँ जी माधव, कोई सवाल ही नहीं पूछा आपने। सर बिलिंग का हाँ, में क्या है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। बिलिंग सेटलमेंट प्लान। बिलिंग सेटलमेंट प्लान, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। BSP क्या है, आपका सवाल है। बिलिंग सेटलमेंट प्लान को शॉर्ट फॉर्म में हम BSP कहते हैं, या फिर हम इसको बैंकिंग सेटलमेंट प्लान भी कहते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। आईटा TIDS के अंदर BSP नहीं मिलता, आईटा गोलाइट में भी BSP नहीं मिलता, ठीक है। BSP मिलता है हमारे को आईटा गो स्टैंडर्ड और आईटा गो ग्लोबल में, इन 2 में ही सिर्फ हमारे को BSP मिल रहा है, ठीक है। BSP का मतलब ये है कि आपको पेमेंट के लिए इजी पे या आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। आपके अकाउंट को BSP के साथ, जो कि आईटा का ही फीचर है, उसके साथ उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप टिकट बनाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, और आईटा के या उस एयरलाइन के जितने पैसे बनते होंगे जो आपने टिकट बनाई है, उन्हों के पास वो पैसे चले जाएंगे। BSP के बेसिस पर हमें क्रेडिट भी मिलता है, शुरू में 3 दिन का, फिर 1 हफ्ते का, 15 दिन का, और ये बढ़ते बढ़ते जितना आप चाहें उतना बढ़ सकता है। बट ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्रेडिट मिलेगा, पर वो क्रेडिट BSP के थ्रू मिलेगा। देखो आईटा हो या GDS हो, इन्हों का एयर टिकटिंग का प्रोसेस ये है कि आपको फोन ना करना पड़े, आपको कुछ और ना करना पड़े। GDS है आपके पास, सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो जाएगी, तो आपका BSP भी उस GDS के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको टिकट आपने बनाई, ठीक है, आपने क्लाइंट को भेजा, देखो सर ये आपकी टिकट है, उसने आपके अकाउंट में पैसे डाले, बात खत्म। अब आपको बिलिंग वगैरह का सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक फीचर है, सारा कुछ उसके पास अपने आप चला जाएगा। आपके अकाउंट से जब पेमेंट ड्यू होगी एयरलाइन की, तब वो ले लेंगे। एयरलाइन को आपने कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसा फीचर है और बड़ा ही बेनिफिशियल फीचर है। आप ये सोचिए, जो एक ट्रैवल कंपनी रोज की 30-40 टिकट इशू कर रही है, वो कहां अपनी बिलिंग करती रहेगी रोज रोज। BSP है तो सारा काम आसान है, राइट, और क्रेडिट भी मिल रहा है, ठीक है। Yes. ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि हर महीने या 2 महीने में ये लाइव सेशन रखें। इस बार हम स्टूडेंट्स को ठीक से इन्फॉर्म नहीं कर पाए और कम से कम 15 स्टूडेंट्स को मुझे रिमूव करना पड़ा है जो कि अपनी वीडियो नहीं ऑन कर रहे थे। तो अगर आप लोग यही नॉलेज लेना चाहें तो जरूर व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लाइव सेशन की, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये लाइव सेशन हम करें। इसी लाइव सेशन को हम यूट्यूब के ऊपर भी डालेंगे। जिन्हें रिमूव किया गया या जो क्लासेस नहीं ले पाए, जो अपने सवाल नहीं पूछ पाए, वो यूट्यूब पे कमेंट डालकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मृदुल जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बड़ी लेट आए हैं, पूछिए सवाल। वो मेरा मिस्टेक सिस्टम की प्रॉब्लम थी जी, मैं कई वजह से ट्राई कर रहा था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज था। आप क्वेश्चन पूछिए। मेरा ऐसा है, मैं अपनी एक एयरलाइंस टिकटिंग कंपनी कर रहा हूँ, मैं अपनी टिकटिंग बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे को आईटा का परमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए है कि एयर टिकटिंग करने के लिए सबसे पहले तो अपनी कंपनी रजिस्टर करो आप, आईटा लो या ना लो, ठीक है। उसके बाद आप जो स्टार्ट करोगे वो आप आईटा गो लाइट से करो। आईटा गो लाइट वाले आपसे जो मांगेंगे वो आपकी बैंकिंग डिटेल मांगेंगे कि आपकी एनुअल रिपोर्ट क्या है, कितने आपके उसमें पैसे हैं, ये सब कुछ मांगेंगे। कंपनी का प्रूफ मांगेंगे कि हाँ जी आपकी कंपनी में क्या क्या है, ठीक है, वो सब आपसे वो मांगेंगे। और इसके अलावा वो आपसे 1-2 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे कि आपके वेब के ऊपर जो भी आपकी पेमेंट होगी वो सिक्योर पेमेंट होगी, उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये आपके पास है, आप उनकी फीस पे करो, अराउंड 50 to 60,000 रुपीज, आईटा सर्टिफिकेट, आईटा रिकॉग्निशन मिल जाएगी, आईटा गो लाइट। यही अगर आप आईटा गो स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आईटा गो स्टैंडर्ड एक्रीडेशन मिल जाएगी। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस ही मैं अभी बता रहा था। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के अंदर यही है कि आईटा गो स्टैंडर्ड के अंदर आपको बीएसपी का फीचर मिलेगा, आईटा गो लाइट के अंदर आपको बीएसपी का फीचर नहीं मिलेगा। आईटा गो लाइट, आईटा गो स्टैंडर्ड और गो ग्लोबल, इनके डिफरेंस के लिए एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप आईटा गो लाइट टूरिज्म स्कूल अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। सर ये वर्ती है इतना हम लोग जो पे करते हैं 70-80,000 जो भी गोलेट के लिए? नहीं, मंथली नहीं है, ये वन टाइम है। तो वन टाइम ऐसे, बट इज इट वर्थ लाइक? आईटा गो लाइट लेना बिल्कुल वर्थ है। अगर आप सच में ट्रैवल इंडस्ट्री में रहना चाहते हो और एयर टिकटिंग करना चाहते हो तो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। चाहे आप महीने की सिर्फ 3 टिकट बुक करो, 4 टिकट बुक करो इंटरनेशनल, बिल्कुल वर्थ है। कुछ पैसे ही नहीं है रेगुलरली सर। फिर तो आईटा गो लाइट जरूर लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए। आईटा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई ये सोचे ना कि वो आईटा को रिप्लेस कर देगा या 2 साल के बाद ये आपके काम नहीं आएगा। ये तो आईटा ने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझा और ये प्रोसेस इजी किया। नहीं तो पहले आईटा लेना या आईटा टिकट इशुएंस राइट्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती थी। आज की डेट में आपको 50-60 हजार रुपए और 2-3 हफ्ते के प्रोसेस पे आपको आईटा टिकटिंग राइट मिल रहे हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल वर्थ है। ओके, तो ठीक है, तो उसके लिए कोई एग्जाम भी देना पड़ता है क्या? आईटा क्या ये कोई एग्जाम नहीं है उसके लिए, कोई एग्जाम नहीं है। आप जो क्लासेस कराते हो वो उससे क्या एडवांटेज? सर देखिए, मैं ये जो सेशन कर रहा हूँ ना, मैं इस सेशन के अंदर हमारी क्लासेस को प्रमोट करना हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये एक फ्री सेशन है, उसके लिए आप अलग से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपको अपना कोर्स सेल करें या ऐसा कुछ करें। हमारी इंटेंशन ये है, आईटा से कुछ रिलेटेड करना है, aita.org पर जाओ, ठीक है। जीडीएस सीखना है, जहां से मर्जी सीखो, पर जेन्युइन सीखो, लाइव प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई लव यू, ठीक है। तो जीडीएस कितने दिन का कोर्स होता है भाई साहब? एक मिनट, जैसे एक तो लास्ट क्वेश्चन, जीडीएस कितने दिन का कोर्स? 3 महीने का। 3 महीने। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं आप सब लोगों को काफी सक्सेस विश करूंगा। कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। बाय बाय। थैंक यू सो मच।